Hi everyone, my name is Dr. Nishtha and I would be exploring some of politics. We really need to know what Indian constitution is. So I'll be starting with class 11th NCERT CBSE syllabus, that is Indian constitution at work, which is very important part of our country, of our nation making. So I will start with the first chapter. So it will be a quick revision, just some of the summarized points. So we will talk about constitution. What is constitution? So by definition, constitution is a body of fundamental principles that allows a state to be governed or constituted. So there are very two important points that constitution talks about or it allows, that is coordination and assurance. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके चार वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. पहला, basic set of rules and regulations. Second is power of decision making. Third is limitations on the government, and fourth is that it fulfills the aspirations of society and create a just society. So while reading it out, I'll read out the four important lines functions. That first function, to provide a set of basic rules that allows for minimal coordination amongst the member of society. The second is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Third, that it has to set some limits on what government can impose on its citizens, and these limitations are fundamental in the sense that the government itself may never trespass them. And the fourth line, which is that it enables the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. Now there are very two important provisions that has been in South Africa's government constitution and इंडोनेशियाज कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट हम साउथ अफ्रीका की अगर बात करते तो उन प्रोविजंस किस चीज़ के लिए है? दैट प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट, हाउसिंग टू ऑल. बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रूल्स हैं, एंड ऑल्सो एजुकेशन. अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ एक कंडक्ट हुआ है नेशनल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे जो भी डिप्राइव्ड पुअर बच्चे हैं, जो डेस्टिट्यूट्स बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, Indonesian government will take care of those children. And now we'll talk about fundamental identity of peoples. Constitution gives fundamental identity to people also. It gives political identity also, and not only the society. One individual person can also achieve his or her goals and can have individual aspirations and freedom. They can exercise, and it also provides a moral identity. Up now the constitution of German was swayed away by ethnicity, and also सदाम हुसैन का इराक में जो रेन था, अगर उसकी बात की जाए तो इराक में उसके रेन ख़त्म होने के बाद सदाम हुसैन के बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनमें एथनिसिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आए. तो हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एथनिसिटी की वजह से नहीं हुआ. सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात की जाए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, जहां आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे स्टेट के बारे में. पर जो यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि कलेक्टिवली डिसीजन लेके बनाई गई है, एंड दैट इज़ हाउ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट रन्स देयर. अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोमलगेशन है क्या? इट इज़ हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू अ बीइंग. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लिविंग एग्जाम्पल की तरह कैसे सेट हुआ. सो इट इज़ जो इतने साल से हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए, वहाँ से जो लीडर्स आए, दे टुक आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस फ्रॉम दोज मूवमेंट्स. जो उनको ड्रॉबैक्स लगे उनको वो यहाँ पर लेके आए हैं. अगर बात की जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो जो फर्स्ट सिटिंग थी दे सैट ऑन 9 दिसंबर 1946, 2 years 11 months के लिए वो बैठे. And then for 166 days everybody came for the meeting, and it was open for public and media people, and the policies were made there and everybody could listen to it. Now when we talk about South Africa and United States and India, these are some of the successful constitutions that we talk about today. So
विल टॉक अबाउट रेफरेंडम. सो हमारी कंट्री में रेफरेंडम जैसा कुछ भी नहीं है. जो फुल फ्लेजेड रेफरेंडम होता है वहाँ पे ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम. द पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन, अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस. लोग खुद अबाइड कर रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को. सो देयर वॉज नो रेफरेंडम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कैसे नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन आया. तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो 5 बार हो चुकी थी. 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1951 में, 1959 में, 1962 में एंड 1990 में कॉन्स्टिट्यूशंस बने. पर सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो ग्रांट करता था वो किंग ऑफ नेपाल करता था. एंड इन 1990 एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन हुई और फिर किंग को सारी फाइनल पावर्स दे दी गई. और वहाँ मोनार्की की सिस्टम चलती थी जहाँ पे किंग अपना पावर को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था. सो नाउ नेपाल चाहता था कि वो अबॉलिश कर दे इस मोनार्की को और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे. पर सारे पावर्स जो है किंग ने अक्टूबर 2002 में ले लिए. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो माओइस्ट हैं. हमारे नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दे रॉब्ड द किंग ऑफ ऑल हिज पावर्स. और फिर उन्होंने बनाई एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है वो बनी 2008 में और मोनार्की अबॉलिश हो गई. एंड 2015 में नेपाल का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करता है फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एंड ये बेसिक जस्टिस की बात करता है. अगर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो किसी में भेदभाव ना हो, मोनोपोली कहीं ना फॉलो हो एंड हॉरिजॉन्टली पावर जो है हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड हो. जैसे हमारे कंट्री में क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है. तो वो हॉरिजॉन्टली पावर को डिवाइड कर दी गई है और ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एंड एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट है. एक राइट बैलेंस होता है इसकी वजह से और वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं अथॉरिटी के बेसिस पे. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है चीज़ों में. और ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया जैसा था वैसा ही रहेगा. इवॉल्व होती है कंट्री, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है चेंजेस के लिए. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. और अगर मैं बताना चाहूँ तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ इन सेंट्रल लाइब्रेरी इन दिल्ली. इट इज़ केप्ट इन अ एयर टाइट, दैट इज़ हीलियम भरा हुआ है उसके अंदर और उसमें हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए गए हैं. So that was an interesting fact. But by striking a balance between possibility to change the provisions and limit such changes, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबे समय तक अच्छे से सर्वाइव करे. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो 1947 3 जून को जब हमारे पार्टीशन हो गया तो बहुत सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के अंडर आ गए. सो दे वर सीज टू कम इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ. तो अब बचे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर्स, 299 मेंबर्स. हमारा जो पॉलिसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में. 284 मेंबर्स जो थे वो कलेक्टिवली आए सिग्नेचर करने के लिए. कब आए, 24 जनवरी 1950 को. एंड ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड. सो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डाला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हो वो सिक्योर रहे, रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसका कोई भी बेयरिंग हमारे सिटीजनशिप राइट पे ना आए. एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बी आर अम्बेडकर की वजह से हुई, दैट इज दैट द असेंबली हैड 28 मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट. तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला सभी को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी को, एक तरह से.
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, जो अथॉरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये आती है the kind of procedure that is followed to make the constitution, the kind of values that the leaders bring while making the constitution. किसी का individual interest नहीं होता, it is for the holistic welfare of a society. And now बहुत important questions होते हैं, debates होने चाहिए कि क्या उस समय हुए थे कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, जुडिशरी की पावर क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं. सो बहुत सारे कंसर्न्स थे एंड एक ही चीज़ मात्र ऐसी थी जो बिना डिबेट के सबने पास कर दी, दैट वाज यूनिवर्सल सफराज. अब यूनिवर्सल सफराज है क्या? इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स एट सर्टेन एज उनको एंटाइटलमेंट मिलेगा कि वो वोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एजुकेशन, क्लास, एनीथिंग और इनकम. और बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ बने सब के लिए डिबेट्स हुई, उनके लिए रीज़न दिए गए. अब जो प्रोसीजर था उसमें बहुत सारे कमिटीज़ बनी, बहुत सारी कमिटीज़ बनी, और कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे. अम्बेडकर को कांग्रेस से प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस वेलफेयर नहीं कर रहा है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बट स्टिल फॉर द होलिस्टिक बेनिफिट ऑफ आवर नेशन उन्होंने एक टीम की तरह टीम वर्क करा. जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ही वॉज राजेंद्र प्रसाद. और अगर बात की जाए चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर. फिर जो हमारा असेंबली है ये 166 डेज के लिए मिले थे और ऐसे बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. इनहेरिटेंस की बात की जाए तो जो प्रिंसिपल इनहेरिट किए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो नेशनलिस्ट मूवमेंट से किए गए हैं. बेस्ट समरी है प्रिंसिपल्स की कि कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस दिए गए थे जो जवाहरलाल नेहरू के थ्रू आए थे. नाउ उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे क्या? एम्स ऑफ असेंबली थी, क्या एस्पिरेशंस है, क्या वैल्यूज है बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स थे जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी वगैरह. अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तो उसमें बोला गया कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरन नेशन है, रिपब्लिक नेशन है, सबको पता है. दूसरी बात, जो टेरिटरीज फॉर्मिंग यूनियन है वो ऑटोनॉमस होंगी. जितने भी पावर है, अथॉरिटी है ऑफ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल फ्लो फ्रॉम द पीपल. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए. फोर्थ इज माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स और ट्राइबल एरियाज हैं उनको एडिक्वेट सेफ गार्ड्स मिलने चाहिए. जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है रिपब्लिक और सोवरन की लैंड, सी, एयर में, उनको मेंटेन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू justice and law of civilized nations. Last, that land would make full and willing contribution to the welfare of mankind for the world peace. So ये सारे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. अगर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात की जाए तो देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. मान लो कोई भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी? क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? स्टेट और सेंट्रल के बीच का कैसा रिलेशंस होगा? ये सारी चीज़ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आती थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर. तो जो द टू इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई गॉट हियर वाज दैट इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स थे हमारे, जिनकी वजह से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया है. BR अम्बेडकर once said that the only change that has to be brought in the constitution is to remove the faults and to accommodate the need of the country. Okay, provisions adapted from constitutions of different countries. तो 5 ऐसी कंट्रीज थी जहाँ से हमने प्रोविजंस लिए. फर्स्ट हमने US से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया, कनाडा से लिया, फ्रांस से लिया और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. तो जब हमने USA से क्या लिया है? USA से हमने पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर लिया है, रूल मेकिंग,
प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस से क्या लिया है हमने? यूएस से फंडामेंटल राइट्स लिया है एंड पावर ऑफ जुडिशियल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम लिया है हमने। आयरिश से हमने स्टेट की पॉलिसी ली है। आप याद रखना कि सी फॉर कनाडा एंड सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, काजी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कनाडा में, वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मेन रोल प्ले करती है, और जो पावर ऑफ रेसिडुअल पावर था उसका आइडिया जो है वो भी हमने कनाडा से लिया है। अगर बात की जाए आयरिश की, तो आयरिश से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली? आयरिश से ली। उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो हम इतनी बार बोलते रहते हैं वो कहाँ से आया? हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सो दैट सम्स अप कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी विजडम के साथ बना है, कितना फोरसाइटेड लीडर्स थे हमारे जिन्होंने इतना इंटीग्रेटिवली क्राफ्ट किया है हमारे इस डॉक्यूमेंट को, एंड हमारी इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है दैट वी हैव बीन एग्जाम्पल टू कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका। सो दिस सम्स अप द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, Indian Constitution at work, and I will be posting a video per day. Like it has 10 chapters, so one chapter each day I will be posting, and it can be watched by class 11 students or anybody who's preparing for any civil services examination. If it is helpful, I will be thankful enough, and thank you everybody, and if you like it, please like, share and subscribe. Thank you.